Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of classical mechanics in which today we will discuss about the generating function. In the current lecture, we will discuss about generating function f1, canonical transformation from generating function f1 एंड द हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम। तो आज के जनरेटिंग फंक्शन के हमारे इस लेक्चर में हम 4 टॉपिक कंसिडर करेंगे। जनरेटिंग फंक्शन f1, because there are some other type of generating function, but here we will discuss only about generating function f1. Then canonical transformation using function f1 एंड फाइनली हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम। ये हमारे 4 टॉपिक यहां पर हैं। नाउ जनरेटिंग फंक्शन। सो व्हाट इज जनरेटिंग फंक्शन? फॉर हैमिल्टन्स प्रिंसिपल वी रिक्वायर दैट द एंड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एंड टाइम, that is the terminal coordinate and terminal time, be fixed with an arbitrary variations in path at all other points. So कोई arbitrary variation हम path में ले रहे हैं, उसके हर पॉइंट पर हैमिल्टन्स प्रिंसिपल के लिए मेन रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट एंड एंड पॉइंट टाइम, दैट इज टर्मिनल कोऑर्डिनेट एंड टर्मिनल टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए। इफ f1 is some function of old coordinate, new coordinate and time, that is f1 is a function of small q, capital Q and t, then following term are also satisfied Hamilton's principle. अब टर्म क्या है? कैपिटल PI कैपिटल QI डॉट माइनस k प्लस df1 by dt, and here f1 is a function of small q, capital Q and t. Since delta variation in integration t0 to t d by dt of f1 dt is equal to delta f1 from t0 to t. So अगर हम df1 by dt का इंटीग्रेशन करके इसका डेल्टा वेरिएशन लें तो df1 by dt एंड dt आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपली यहां पर df1 बचेगा एंड df1 एंड वापस आप बाहर डेल्टा वेरिएशन ले रहे हो तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा वेरिएशन इन f1 एंड लिमिट फ्रॉम t0 टू t, और ये क्या हो जाएगा? जैसे आप t की लिमिट रखते हो डेल्टा f1 एट t माइनस f1 एट t0, सो ये हमारा इसके इक्वल होगा। हियर f of t and f of t0 are the end point values of f. सो फंक्शन जो हमारा f है उसके एंड पॉइंट वैल्यूज जो है वो हमारी f1 एट t एंड f1 एट t0 है। Thus, we can generalize the requirement of canonical transformation as. So, अगर हमको canonical transformation की रिक्वायरमेंट को अब जनरलाइज करनी है तो क्या होगा? डेल्टा इंटीग्रेशन t0 टू t सिग्मा i pi qi डॉट माइनस h dt इज इक्वल टू डेल्टा इंटीग्रेशन t0 टू t सिग्मा i कैपिटल PI कैपिटल QI डॉट माइनस कैपिटल K प्लस d बाई dt ऑफ f1 dt इज इक्वल टू 0। सो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को जनरलाइज करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी where two integrand are generally related as lambda
सिग्मा आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच इज इक्वल टू सिग्मा आई कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस के प्लस डी एफ वन बाई डी टी। सो हमारे ये जो दो इंटीग्रेंड हैं ये आपस में रिलेटेड इस इक्वेशन से होंगे। हियर lambda is a constant scale factor and it is known as the valence of canonical transformation. So lambda हमारा बेसिकली कांस्टेंट स्केल फैक्टर है जो दोनों टर्म को इक्वल करने के लिए या इक्वेट करने के लिए हमने यूज किया है एंड इट इज नोन एज वैलेंस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी लैम्डा को हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का वैलेंस कहते हैं। when lambda is not equal to 1, so अगर lambda हमारा 1 नहीं है then उस केस में the transformation given by this equation is known as extended canonical transformation। so अगर इस इक्वेशन में ये जो हमारे lambda है इसकी वैल्यू अगर 1 नहीं हो तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा this transformation is extended canonical transformation। normally lambda is set to unity, that is lambda equal to 1, and therefore the transformation is called the univalent or ordinary canonical or simply canonical transformation। so normal case में हम lambda की वैल्यू 1 सेट करते हैं। so we set lambda to the unity, so the transformation given by this equation, क्योंकि lambda हमारा 1 हो गया so lambda को 1 कर दो और उसके बाद में यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन बचा हुआ है it is known as univalent canonical transformation or ordinary canonical transformation or simply canonical transformation। now generating function f1, so अगर हम जनरेटिंग फंक्शन f1 लें तो वो क्या होगा, generating function f1, let f1 is a function of old coordinate, new coordinate and time, that is f1 is a function of small q, capital Q and t। so f1 is a function of small qi, capital Qi and t। so f1 हमारा old coordinate, new coordinate and time का फंक्शन है, therefore its canonical transformation is, so अगर हमको f1 का canonical transformation लेना है तो वो क्या होगा, pi qi dot minus h is equal to capital Pi capital Qi dot minus k plus d by dt of f1, ये हमारे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। and since f1 is a function of a small qi, capital Qi and t, so df1 by dt अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, del f1 by del qi into qi dot plus del f1 by del capital Qi into capital Qi dot plus del f1 by del t। so pi qi dot minus h equal to capital Pi capital Qi dot minus k plus del f1 by del small qi into qi dot plus del f1 by del capital Qi dot plus del f1 by del t। now on comparing the coefficients of small qi dot, capital Qi dot and other terms, so यहां पर हम पहले स्मॉल qi dot का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। so लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल qi dot का कोएफिशिएंट स्मॉल pi एंड राइट हैंड साइड में स्मॉल qi dot का कोएफिशिएंट del f1 by del small qi। it means small pi is equal to del f1 by del small qi। now कैपिटल Qi dot का कोएफिशिएंट लें, सो लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में यहां पर Pi और यहां पर
del f1 by del capital Qi. So capital Pi plus del f1 by del Qi equal to 0, or capital Pi is equal to minus del f1 by del capital Qi. Now रिमेनिंग टर्म्स जो हमारी रह गई हैं, अगर उसका कोफिशिएंट हम लें या उस टर्म को हम लें तो क्या होगा? सो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एच एंड राइट हैंड साइड में माइनस के प्लस डेल f1 बाई डेल टी. सो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस के प्लस डेल f1 बाई डेल टी. और यहां से अगर हम ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन मीन्स कैपिटल के की वैल्यू निकाले तो वो क्या होगी? So capital K equal to capital H plus del F1 by del T. Here K is transformed Hamiltonian, which is function of new coordinate, new momentum and time, and H is Hamiltonian or original Hamiltonian, which is a function of old coordinate, old momentum and time. So small pi equal to del f1 by del small qi, capital Pi equal to minus del f1 by del capital Qi, and transformed Hamiltonian, that is k equal to h plus del f1 by del t. In this way, f1 provides a link between the old and new coordinates. So f1 जो हमारा है वो ओल्ड कोऑर्डिनेट एंड न्यू कोऑर्डिनेट में एक लिंक प्रोवाइड करता है. Therefore, it is called the generating function of canonical transformation. So f1 हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट एंड न्यू कोऑर्डिनेट में एक लिंक प्रोवाइड करता है, इसलिए f1 को हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जनरेटिंग फंक्शन कहा है. So that's why f1 is called the generating function. इसी कारण हम f1 को जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं. Therefore, for univalent canonical transformation, that is canonical transformation for which lambda equal to 1, the physical dimension of the transformed Hamiltonian remains unchanged. So univalent canonical transformation में transformed Hamiltonian का physical dimension चेंज नहीं होता है. If f1 is not an explicit function of time, that is f1 is a function of a small q and capital Q, then the value of transformed Hamiltonian k, that is Hamiltonian, is the same as that of the Hamiltonian h in the original phase space. So if f1 is not an explicit function of time, f1 time का explicit function नहीं है, so f1 is a function of old coordinate and new coordinate, and in this case transformed Hamiltonian k is the same as that of the Hamiltonian h in the original phase space. So इस केस में original phase space में जो Hamiltonian h था वही हमारा ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन कैपिटल के होगा. Therefore, capital K equal to h. So if f1 is a function of a small q and capital Q, and f1 is not the function of t, then new Hamiltonian or transformed Hamiltonian and the original Hamiltonian, that is h, will be the same. So K equal to h. Now, canonical transformation from generating function f1. So generating function f1 को यूज करके अगर हम canonical transformation निकालें तो वो क्या होगा? So canonical transformation from generating function f1. If generating function f1 is given, then we construct the n equations of the old momenta using a small pi is equal to del f1 by del qi. So अगर हमको generating function
F1 की वैल्यू दी हुई है, उस केस में हम इस रिलेशन को यूज करके ओल्ड मोमेंटा PI की n इक्वेशंस फाइंड करेंगे। Here I equal to 1, 2, 3 and so on. By determining PI's from above equation and QI's are known quantity, we solve capital QI as the function of a small qi, a small pi and t. So इस इक्वेशन से हमको स्मॉल pi मीन्स ओल्ड मोमेंटम की वैल्यू मिल गई है। सो अगर आपको ओल्ड मोमेंटम मिल जाता है एंड ओल्ड कोऑर्डिनेट नोन क्वांटिटी है, सो अगर आपके पास में ये है और ये भी है, देन हम न्यू कोऑर्डिनेट qi की वैल्यू फाइंड करेंगे and in this case new coordinate will be the function of old coordinate, old momentum and t. means जो भी हमारे पास में इक्वेशन होगी उसको हम कैपिटल QI के लिए सॉल्व करेंगे। After determining the new coordinates, that is capital QI, obtain n equations of the new momenta by, अब हमको न्यू कोऑर्डिनेट मीन्स कैपिटल QI की वैल्यू मिल गई है। सो हमको न्यू मोमेंटा दैट इज कैपिटल P की वैल्यू निकालनी है। सो कैपिटल PI की n इक्वेशंस निकालने के लिए हम कैपिटल PI इक्वल टू माइनस डेल F1 बाई डेल QI को यूज करेंगे। सो इस इक्वेशन को यूज करके हम न्यू मोमेंटा की n इक्वेशंस डिटरमाइन करेंगे। Here I equal to 1, 2, 3 and so on. Now we find the inverse transformation. अब हमको कैपिटल PI मिल गया, कैपिटल QI मिल गया। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम स्मॉल PI एंड स्मॉल QI की वैल्यू निकालेंगे। It means we will determine the old momenta as the function of new coordinate, new momentum and time. That is small PI is a function of capital QI, capital PI and t, and also we determine the old coordinate by inverse transformation. So inverse transformation use करके हम old coordinate QI की वैल्यू निकालेंगे and here QI is a function of new coordinate, new momentum and t. That is small QI is also the function of capital QI, capital PI and t. Now we find the value of transformed Hamiltonian, that is K, by using K equal to H plus del F1 by del T. So लास्ट में हम इस इक्वेशन को यूज करके ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन मीन्स कैपिटल K की वैल्यू निकालेंगे। Now हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम। सो जनरेटिंग फंक्शन F1 को यूज करके हम हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन फॉर ए हार्मोनिक ऑसिलेटर if the Hamiltonian and generating function for it is given by h equal to p square by 2m plus half kq square and f1 equal to 1 by 2 root of km q square cot q. So हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर हमको हैमिल्टोनियन h एंड जनरेटिंग फंक्शन f1 की वैल्यू दे रखी है जो h इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के क्यू स्क्वायर एंड f1 इक्वल टू हाफ रूट ऑफ के एम क्यू स्क्वायर कॉट क्यू है, we determine the transformed Hamiltonian. So हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमको ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन कैपिटल K की वैल्यू निकालनी है, ओरिजिनल हैमिल्टोनियन h एंड जनरेटिंग फंक्शन f1 हमको दिया हुआ है। नाउ
solution. First of all, we construct the n equations of the old momenta pi by pi equal to del f1 by del small qi. So first step हमारी है, we determine n equations of the old momenta, that is small pi, by using pi equal to del f1 by del qi, and f1 हमारा ये है. सो हमको इसका विद रेस्पेक्ट टू q डिफरेंशिएशन करना है, जिससे हमको ओल्ड मोमेंटम p की वैल्यू मिलेगी. सो स्मॉल p इक्वल टू डेल बाय डेल q ऑफ हाफ रूट ऑफ km q स्क्वायर cot q. नाउ हाफ रूट km एंड cot q कांस्टेंट एंड q स्क्वायर का डिफरेंशियल 2q. सो p इक्वल टू हाफ रूट km इंटू 2q cot q. नाउ इस 2 से ये 2 कैंसिल करो. सो स्मॉल p इक्वल टू रूट km स्मॉल q cot q. सो ओल्ड मोमेंटा या ओल्ड मोमेंटम p की वैल्यू रूट ऑफ km q cot q हमको मिल गई है. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल QI एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल QI, स्मॉल pi एंड t. सो हमको अब ओल्ड कोऑर्डिनेट, ओल्ड मोमेंटम एंड टाइम के फंक्शन के रूप में न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल QI की वैल्यू निकालनी है. सो स्मॉल p हमने रूट ऑफ km q cot q निकाला है. यहां से हमको q को फ्री करना है. सो cot q इक्वल टू स्मॉल p डिवाइडेड बाय रूट km स्मॉल q, एंड ये हमारा cot है. tan निकालोगे सो tan q इक्वल टू रूट km स्मॉल q अपॉन p. तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया है. सो tan q हमको ये मिल गया. इट मींस कैपिटल Q इक्वल टू tan इनवर्स रूट km स्मॉल q अपॉन p. तो हमने कैपिटल Q की वैल्यू स्मॉल q स्मॉल p के टर्म्स में निकाल ली है, क्योंकि यहां पर हमारे पास में कैपिटल Q टाइम का फंक्शन नहीं है. सो सिंस कैपिटल Q इज नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, सो कैपिटल Q इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ km q अपॉन p. Now obtain the n equations of the new momenta pi by pi equal to minus del f1 by del q1. So अब हम क्या करेंगे, pi equal to minus del f1 by del capital QI को यूज करके न्यू मोमेंटा pi की n इक्वेशंस निकाल देते हैं. Now we will determine the value of p by using this equation, and here f1 इक्वल टू हाफ रूट ऑफ km q स्क्वायर cot q. तो आप क्या करोगे, इसका कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो और साथ में नेगेटिव लगाओ. सो कैपिटल P इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल कैपिटल Q ऑफ हाफ रूट ऑफ km q स्क्वायर cot q. सो हाफ रूट km q स्क्वायर हमारे लिए कांस्टेंट, क्योंकि हमको कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, एंड cot q का डिफरेंशियल माइनस cosec स्क्वायर q. सो p इक्वल टू माइनस हाफ रूट ऑफ km q स्क्वायर, एंड cot q का हो गया माइनस cosec स्क्वायर कैपिटल Q. सो p इक्वल टू माइनस हाफ रूट ऑफ km q स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर q. अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. सो कैपिटल P इक्वल टू हाफ रूट ऑफ km q स्क्वायर एंड cosec स्क्वायर q इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर q. तो कैपिटल P की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी. नाउ P अभी हमने ये निकाला है. cot q हमारा स्मॉल p अपॉन रूट ऑफ km q था. तो आप क्या करोगे, इस cot q की जगह ये पुट कर दो. सो कैपिटल P की वैल्यू हमको मिलेगी. So capital P equal to half root km q square and in bracket 1 plus p square upon km q square. क्योंकि cot q हमारा ये है तो आप इसका स्क्वायर करोगे
और यहां पे रखोगे तो p की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। नाउ इफ क्यू स्क्वायर बाई 2 को अंदर लो, सो बाहर बचेगा रूट के एम एंड इन ब्रैकेट हाफ क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2 के एम। क्योंकि ये क्यू स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल पी हमारा ये होगा। और नाउ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय के। सो अगर हम इस इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई एंड के से डिवाइड करें, तो जिस के से हमने डिवाइड किया है वो हमारा यहां पर है, और हमने के से भी मल्टीप्लाई किया है, तो जिस के से मल्टीप्लाई करेंगे उसको अंदर लेकर चले जाते हैं। सो हाफ क्यू स्क्वायर से अगर के मल्टीप्लाई होगा, सो हाफ के क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2 के एम से अगर के मल्टीप्लाई होगा, सो पी स्क्वायर अपॉन 2m। सो कैपिटल पी हमारा ये आ जाएगा। अब यहां पर रूट में के है और यहां पर सिंपल के है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो रूट m अपॉन के और ब्रैकेट वाली टर्म हमारी ऐसे ही रहेगी। सो कैपिटल P इक्वल टू रूट ऑफ m अपॉन के एंड इन ब्रैकेट हाफ k q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन 2m। सो दिस विल बी the value of capital P and original Hamiltonian हार्मोनिक ऑसिलेटर का कैपिटल H इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के क्यू स्क्वायर था, तो आप इसको कैपिटल H लिख दो। सो कैपिटल P इक्वल टू रूट ऑफ m अपॉन के कैपिटल H, और यहां से अगर आप H की वैल्यू निकालोगे, so H equal to root of k by m into p. So original Hamiltonian in terms of new momenta p हमको ये मिला है। Now original Hamiltonian हमने ये निकाल दिया, and generating function f1 half root of km q square cot q था। Now we finally obtain the transformed Hamiltonian k by, so अब आपके पास में h है, जनरेटिंग फंक्शन f1 है, और आपको ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन k की वैल्यू निकालनी है। सो k इक्वल टू h प्लस डेल f1 बाई डेल t। अब इस इक्वेशन में h को रूट k बाई m इंटू पी लिख देते हैं, और f1 हमारा ये है। सो k क्या हो जाएगा, रूट k बाई m इंटू पी प्लस डेल बाई डेल t ऑफ हाफ रूट के एम क्यू स्क्वायर कॉट क्यू। और ये जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन f1 है, ये टाइम का फंक्शन नहीं है। इट मीन्स इफ वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट विल बी 0। सो कैपिटल K इक्वल टू रूट ऑफ k बाई m इंटू पी। सो ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन की वैल्यू हमको रूट k बाई m इंटू पी मिल गई है, एंड दिस इज एक्चुअली ओरिजिनल हैमिल्टोनियन, क्योंकि ओरिजिनल हैमिल्टोनियन h इक्वल टू रूट k बाई m इंटू पी है। और यही हमने कहा था कि इफ generating function is not the explicit function of time, then the transformed Hamiltonian will be equal to the original Hamiltonian. So अगर generating function f1 हमारा टाइम का explicit function नहीं है, means it is not function of time, or f1 is only the function of small q and capital Q, then the transformed Hamiltonian will be equal to the original Hamiltonian, and h हमारा p स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के क्यू स्क्वायर है। So the original Hamiltonian was quadratic equation in both q and p, but Hamiltonian, that is transformed Hamiltonian k, is linear in p and it has no dependence on q. So यहां से क्लियर है कि ओरिजिनल हैमिल्टोनियन हमारा स्मॉल p एंड स्मॉल q का क्वाड्रेटिक फंक्शन था, और ये जो हमारा न्यू हैमिल्टोनियन है, ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन है,
या कैमिल्टोनियन है k, इट इज द लीनियर फंक्शन ऑफ p। ये हमारा p का लीनियर फंक्शन है और इसका कैपिटल Q पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। Therefore, the solution become easier now। तो कैपिटल K is the linear function of P and it does not depend on capital Q. So we can easily find this value, or it is very easy to find its solution. So here we end our session. In the current session, we have discussed about the generating function f1. Why f1 is called a generating function? The process of finding the transformed Hamiltonian by generating function f1, and also we use simple harmonic oscillator problem to find the transformed Hamiltonian. So goodbye.